Great morning, student. Hope so. You are fit and fine at your home. Today we are going to continue our chapter number 6, building self-confidence. In this chapter, we are going to solve back exercise of this chapter. In this chapter, before this, we have discussed all things related to this chapter. Now today we are going to solve the back exercise, our first part. So let's continue, student. Today we going to solve our back exercise chapter number 6. So students, chapter number 6 back exercise we is going to solve. Their first A part is MCQ question. In first MCQ, that prevents a child from developing resilience and coping with stress and failure. मीन्स कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चे को फ्रॉम डेवलपिंग रिलीजियंस एंड कोपिंग और रिलीजियंस और स्ट्रेस फेलियर से. ठीक है. सो ऑथोरिटेटिव मीन्स इफ यू गिव द ऑथराइजेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, सो दैट इज ऑल्सो नॉट. नाउ रेगुलर schooling also a good place, but schooling only 6 to 8 hours, then after that students are free. So overprotective parents, that is the answer. Playing also not their answer. Okay. Now next is the dash advertising affect self confidence of a child. So overprotective parents या love and care, physical punishment मीन्स जो एडवाइजर इफेक्ट क्या होते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उसका क्या क्या रीजन हो सकता है. फर्स्टली ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स एंड फिजिकली पनिशमेंट. सो आंसर इज आवर बोथ आंसर. नाउ वी डिस्कस हेयर थर्ड क्वेश्चंस. कल्चरल competence comprise an understanding all the aspect of a cultural, that is social, educational and dash. That is answer is emotional, social, educational and next is emotional. So our answer is emotional. Now we going to next MCQs. Next MCQs is people with self confidence have a dash outlook. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं. नेगेटिव थॉट्स के? नो, नेगेटिव थॉट्स तो नहीं होते हैं. एरोगेंट होते हैं? नो. नेक्स्ट इज आउटवर्ड होते हैं? नो. सो आवर आंसर इज पॉजिटिव. तो उनका जो आउटलुक होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव. पीपल विद द लो कॉन्फिडेंस आर, जो पीपल लो कॉन्फिडेंस के होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? अनप्रिपेयर्ड. दैट इज अनप्रिपेयर्ड. नाउ Phillips in the first, trust in the one's own judgment and ability is called. That is the definition of self-confidence. So our first answer is self-confidence. Now next is our family, neighborhood, friend, relative, social constitute. our that is जो हमारी फैमिली है, नेबरहुड्स हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, स्कूल हैं, वो क्या है हमारी सोसाइटी. सो आंसर इज सोसाइटी. फर्स्ट आंसर इज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड आंसर इज सोसाइटी एंड थर्ड इज अ डैश पेरेंटिंग शील्ड अ चाइल्ड फ्रॉम फेसिंग एनी पेन एंड स्ट्रगल. किस टाइप के पेरेंटिंग से क्या होता है कि बच्चे पेन और स्ट्रगल बियर नहीं कर पाते. दैट इज थर्ड, ओवर प्रोटेक्टिंग. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप रिफ्लेक्टेड इन इट्स पार्टिसिपेट्स एंड बिलीव आर कलेक्टिवली रेफर एज कल्चर. सो फोर्थ इज कल्चर. सो फोर्थ आंसर इज कल्चर. नेक्स्ट इज possible challenges and pitfalls in the pursuit of a goal are termed as a threat. So our answer is threat. So our Phillips is finished. Now we going to solved question answer. Our first solved question answer is, what are the three most prominent factor of that contribute to the building confidence area? So there are the most prominent factor are, first is cultural factor, social factor,
and physical factor. They are the main factor that influence our self confidence या building self confidence. Okay, mention any 3 attitude of the self confidence. कोई भी 3 attitude बताने हैं self confidence people के. Firstly, realistic view of the self. जो भी view हो, confidence people are able to recognize their strength. means जो persons हैं उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या strength है और क्या वो अपनी जो weakness है उनको भी वो एक्सेप्ट करता है सेम टाइम पे. ओके, नाउ डील विद द मिस्टेक. कॉन्फिडेंट पीपल एक्सेप्ट देयर मिस्टेक रेदर देन कवरिंग और जस्टिफाइंग. मीन्स इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अगर उनकी कोई मिस्टेक्स हो जाती है उसको कवर करने की बजाय वो उसको फेस करते हैं. मोर एवर दे विलिंग टू लर्न फ्रॉम इट, और उससे कुछ सीखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज our focus on growth. So you can see in this image third of independent person, that is a focus on growth. In the spite recognizing their weakness, क्या करते हैं वो अपनी वीकनेस को रिकोगनाइज करते हैं. they choose the focus on the opportunity to grow rather than the concentrating on their शॉर्टकमिंग. उनकी शॉर्टकमिंग की बजाय वो अपनी अपॉर्चुनिटियों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ स्वॉट. स्वॉट क्या है एंड हाउ इज़ इट यूजफुल, और ये यूजफुल कैसे है. फर्स्ट इज स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट. इट इज़ a technique that help one to analyze one's own strength and weakness. It also help one in identify both the available opportunity and possible threat or challenge. Mention any 3 steps we can take to organize ourselves. ओके, सो ये क्या है, एक टेक्निक्स है जो अपने आप को एनालाइज करती है. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करते हैं. इट आल्सो हेल्प वन टू आइडेंटिफाई बोथ. आइडेंटिफाई करती है कि किस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को और पॉसिबल थ्रेट्स और चैलेंज को. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर मेंशन एनी 3 स्टेप वी कैन टेक टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. कोई भी 3 स्टेप बताइए जो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने सेल्फ में. फॉलो द स्टेप दैट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग आवर टास्क. मीन्स अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले. मेक अ शेड्यूल और टाइम टेबल. ऑलवेज यू डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम. अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. मीन्स प्रोकास्टिनेशन को आपको अवॉइड करना है. अपने काम को टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, उसे आगे पर नहीं टालना है. ओके, नाउ हाउ डज द अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ स्वॉट एनालाइजिंग हेल्प इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. मीन्स आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी कैसे स्वॉट का पार्ट है और एनालाइज करना है उसको. अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ स्वॉट एनालाइजिस हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट और चैलेंज. मीन्स ये क्या है, किसमें हेल्प करती है, कोई भी प्रोजेक्ट हमने करना है और उस चैलेंज और को रिकॉग्नाइज करती है. दैट अलाइन विद आवर कोर स्ट्रेंथ. और ये हमारी स्ट्रेंथ को क्या करती है, अलाइन करती है, मतलब प्रॉपरली उसे सेट करती है. बाय परस्यूइंग द प्रोजेक्ट दैट आर compatible with our strength and interest. मीन्स अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपकी स्ट्रेंथ का, आपको इंटरेस्ट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है. वी आर मोर लाइकली सक्सेस एंड शार्पन आवर स्किल इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अपनी स्किल में क्या हो जाते हैं, शार्पन. होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट.